Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. বাথরুমে হ্যান্ড ওয়াশটা খতম হয়ে গেছে আছে কি আর Okay. So is this your first chemistry class? No, sir. Okay. So what was the chapter was running? The matter. Repeat please. The matter. Metal. Acha. Okay. So we will again start with metal. Okay. I don't know till which part you have read. So I will start again and give me your answer because if this is your read part, okay. Metal. So the students are Ayush Sinha, Siddharth Mukherjee, and Sweta Mahato. Okay. Ayush from which school? Sir, AG Church. Sodhpur or Asansol? Sir, Sodhpur. Sodhpur. Okay. Siddharth. Sir, St. Patrick's. Uh, your voice is not coming properly. Please. Sir, St. Patrick's. Okay. Saint Patrick's. Okay. Sweta. The Loreto Convent. Okay. Means 3 students and all of you are from different schools. Okay. Okay. No problem. So first of all, tell me, what is matter? Have you any idea? As you are telling, Siddharth, I am not getting your voice. The matter is anything that has mass and occupies space. Acha, okay. Anyone wants to tell anything else? Okay, no one. That means you told that matter is anything which have some mass and occupy space. Is it clear to you? Anything which have some mass and occupy some space? Sir, do we need to write it? Yes, you have to write it. But first of all, tell me, is this concept is clear that matter is anything which have some mass and occupy some space? Yes, sir. Okay. Okay. My voice is clear, no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So first of all, tell me, what is the meaning of occupy some space? What is the meaning of occupying this space? What do you understand by occupy some space? It takes a certain amount of area. Siddharth, can you check your mic? Because your voice is very low, better below low. I can't understand what you are saying. Others is to voice of other students are coming properly, but yours were not. Sir, may I answer? Yes, please. The occupied space means the space taken, means the area taken by the matter to cover. Okay, area covered by matter. Okay, occupy space. Okay, very good. The simple thing is occupying space means, look at here. Suppose in this free space I placed one cube.
I placed one cube. Suppose this is blue colored cube. Okay, this is blue colored cube. Okay, so occupying the space means if this cube is present here, it means we cannot place any other cube in this position. Suppose you have placed one booth over your bed. So on the same position, exactly on the same position, you cannot place another booth. To place another booth, you have to replace it. You have to replace it. Then the space will be vacant. Then you can place another booth here. But on the same space, you cannot replace or cannot place any another booth, any another molecule, any another substance. That is means occupy space. सिंपल सा इसका मतलब हुआ बेटा कि अगर कोई भी एक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है उस जगह पे तो एग्जैक्टली उसी जगह पे एग्जैक्टली द सेम पोजीशन वी कैन नॉट प्लेस अनदर मैटर एग्जैक्टली उसी जगह पे हम लोग और कोई दूसरे मैटर तो नहीं बिठा सकते मान लो ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है दिस इज 3 डायमेंशनल एक्सिस एक्स ये वाई ये जेड तो अगर यहाँ पर कोई भी एक बॉक्स प्रेजेंट है तो एकदम इसी जगह पे हम लोग और कोई बॉक्स को प्लेस नहीं कर सकते इसको हमको पहले हटाना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा फिर वो जगह वैकेंट होगा फिर हम लोग उसको प्लेस कर पाएंगे तो जब तक ये प्रेजेंट है तब तक ये वो वाले स्पेस को ऑक्युपाई कर चुका है वहां पर और कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्युपाइंग स्पेस ठीक है एट ए टाइम at one position there should be only one particle or one matter present understand समझ में आया Yes, sir. कोई डाउट है किसी को श्वेता No, sir, no doubt. और तो सिद्धार्थ okay so this is the meaning of occupy space okay so every matter having some mass this is normal concept having some mass this having mass this both having mass and it will occupy some space it is called matter very good now it is a definition of the matter is anything which have some mass and occupy some space is called matter like examples are iron water cricket ball all of these are matter now tell me next concept is states of matter so tell me in how many states a matter can be exist So matter exists in 3 states. matter exists in 3 states okay 3 which are which states are Solid, liquid, gas. solid liquid gas very good solid
लिक्विड गैस, ये हो चुका था। तुम लोग का कितना क्लास हुआ है केमिस्ट्री में? Sir, 3 to 4. 3 to 4. So matter chapter has completed. So we were in the last part of the matter chapter. Acha, you were in the last part of matter chapter. Okay. Okay, so we will read this in a quick manner. Okay. So first of all, solid. So solid. What is the definition of solid state? What is the definition of solid state? Or some properties? Tell me some properties about solid state. The solid has fixed volume and a fixed shape. Okay. Solid having fixed volume and shape also. Now tell me, in solid, acha, what about the liquid? They are not having the fixed volume. Yes, sir, they have fixed one. So they have fixed volume, but they do not have a fixed shape. They take up the shape of the container. Yes. No fixed shape, but having fixed volume. Okay. Having fixed volume means, suppose we take 2 liter of water, so it will remain 2 liter. Whether we are taking it in a small container or we are taking it in a large container, it will be always 2 liter. But it will take the shape of container. It will take the shape of container. Okay, this is liquid. What I have written. Gaseous. What about gaseous? They do not have a We fixed don't shape nor a fixed volume. Okay. have Neither fixed shape neither fixed shape nor fixed volume. Okay. Write it down. Complete it and then not me. Fauziya? Yes, sir, completed. Acha.
Now tell me, in solid, molecules are tightly paired, loosely paired. So Tightly packed. Tightly paired. That means molecules or atoms are in compact pattern, or they are tightly packed. In liquid, they are somehow loose pattern. Molecule atoms are in somehow loose pattern compared to solid. Clear? आई थिंक ये सब तो पता है. yes, sir. बट गैसियस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. यही होता है ना? किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. No, sir. तो देखो हम लोग सॉलिड का रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे दिखाएंगे, जो एटम्स टाइटली पैक्ड है मतलब ऐसे दिखाएंगे. सर हाँ बोलो. सर मेरा स्क्रीन में आपका बहुत ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ 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 रिपीट. सर मेरा स्क्रीन में आपका बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा ठीक से क्लियर. तुम्हारा स्क्रीन में बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली, सो तुम्हारा नेटवर्क स्लो चल रहा है. बाकी तो दिखाई दे रहा है. Yes, sir. हाँ तो Yes, तुम्हारा तुम एक बार रीजॉइन करो, एक बार डिस्कनेक्ट करो, वापस से एक बार रीजॉइन करो. ओके सर. तो ऐसा होता है. देखो सॉलिड का पैटर्न एकदम कॉम्पैक्ट पैटर्न. ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट पैटर्न लाइक दिस. ठीक है, टाइटली बाउंड विथ ईच अदर. लिक्विड में तो ऐसा दिखाई दे, थोड़ा सा दूर रहेगा आपस में, ऐसा ऐसा. गैसियस में क्या होता है? फार अवे. एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ हो गया. समझ में आया? समझ में आया? yes, sir. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई देगा कुछ वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है एटम के बीच में. ये वाला एक एम्प्टी स्पेस, थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस यहाँ, थोड़ा सा यहाँ पर, ये वाला जहाँ पर थोड़ा सा कलरिंग कर रहे हैं हम, ये जगह पे देखो. फिर ये स्पेस देखो, ये वाला स्पेस देखो, मतलब ये बीच वाले जो पोजीशन है वहां पर थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है ना, कलर जो दिए हैं. Yes, sir. तो ये एम्प्टी स्पेस तो क्या बोला जाता है, किसी तो पता है? Intermolecular space. हाँ, Intermolecular space. यस, इंटर मॉलिक्यूलर फ्री स्पेस भी हम लोग इसको बोलते हैं. तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो यहीं से है. तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. दैट्स मीन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि
इंटरमोलिक्यूलर फ्री स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर फ्री स्पेस किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, सॉलिड में या लिक्विड में या गैसियस में? गैसियस में। गैसियस में। सो इंटरमोलिक्यूलर फ्री स्पेस इज very low in solid, इसमें क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फ्री स्पेस इज इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। वो सॉलिड और गैस के बीच में है, देखो इससे ज्यादा फ्री स्पेस है लेकिन इससे कम है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, इंटरमोलिक्यूलर फ्री स्पेस इज मैक्सिमम। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ओके यस सर। ओके। नाउ हम लोग यहाँ पर उस पॉइंट को ऐड करेंगे, सॉलिड हैविंग perfect shape and geometry, it do not have fixed shape, it is also do not have fixed shape। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये मेरा रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम इज परफेक्ट और नॉट फॉर सॉलिड? Perfect. परफेक्ट, दैट्स मीन वॉल्यूम इज डेफिनाइट। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनाइट होता है कि नहीं? Yes, sir. स्पेसिफिक। सो सेम एज सॉलिड होता है इसका भी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज सेम एज सॉलिड। लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या सेम होता है? No, नो sir. सर। नहीं होता है। सो नो डेफिनाइट वॉल्यूम। यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आया? यस सर। पहले समझते चलो, ठीक है, फिर जब बताएंगे तब नोट डाउन कर लेना, पहले समझते चलो। अभी देखो, जैसे कि तुम लोग का ये पढ़ा हुआ है, लास्ट वाले सर पढ़ा दिए थे, तो अभी हम तो ये बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस में फ्लूइडिटी किसका है, कौन फ्लो कर सकता है? Liquid and gas. यस। लिक्विड एंड गैस, बट सॉलिड फ्लो करता है क्या? No, नो sir. सर। नो। सो इट हैज नो फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी नहीं है, दैट इज इट इज, अगर फ्लूइडिटी नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड। जो फ्लो नहीं कर सकता है, जो मूव नहीं कर सकता है, उसको बोला जाता है रिजिड। एक जगह पे एकदम फिक्स बैठा हुआ है, डट कर, ठीक है। तो सॉलिड्स आर रिजिड, बट लिक्विड हैविंग फ्लूइडिटी, और इसका भी सेम होता है, सेम एज लिक्विड। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. हाँ बोलो, क्या डाउट है? No, sir. अच्छा, नो सर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से।
सर हाँ बोलो। सर मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या नहीं कर पाओगे? सर नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा, वो बोर्ड दिख नहीं रहा ठीक से। अच्छा, बोर्ड दिख नहीं रहा है सही से, तो ठीक है, जो कुछ नहीं। जो नोट डाउन कर रहे हो बच्चों वो थोड़ा शेयर कर देना। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। सर, हाँ बोलो। तो मेरा एक प्रॉब्लम था। हाँ बोलो, पूछो। सर, ये गैस जो है, गैस तो फ्लूइड की मतलब लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करता। वो हाँ हर डायरेक्शन में फ्लो करता है। हाँ और ये जो लिक्विड है वो सिर्फ डाउनवर्ड्स फ्लो करता है। हाँ, मतलब हम यहाँ पर सिर्फ फ्लूइड वाला प्रॉपर्टी बता रहे थे, फ्लो कौन कर सकता है, डायरेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, वो सिर्फ फ्लो कौन कर सकता है सिर्फ वो बता रहे। यस सर। ठीक है, तो हमसे तो पता है कि मेरा जो सॉलिड है या फिर जो सॉलिड जो जो लिक्विड है वो फ्लो तो कर ही सकता है ना, बस वो बता रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। सर कंप्लीटेड। अच्छा, सबका हो गया? यस सर। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, मूव कर रहे हैं हम लोग। देखो, जो तुम क्वेश्चन पूछे ना कि लिक्विड सिर्फ नीचे की तरफ फ्लो कर सकता है ऊपर की तरफ नहीं, तो हम लोग मैन पावर से लिक्विड को ऊपर की तरफ फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेरा नेचुरल ट्रेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन मैन पावर से तो हम लोग नीचे से ऊपर ला ही सकते हैं ना। जैसे कि घर में हम लोग ऊपर टैंक में पानी तो कैसे ले जाते हैं, बाय वो मोटर लगाते हैं ना, यस सर। पंप लगाते हैं, तो वैसे ही। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर न्यू देखते हैं। देखो, तो ये तो हुआ मेरा सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ प्रॉपर्टी। अभी बताओ तो ये तीन स्टेट एक्सेप्ट दिस थ्री स्टेट, क्या और भी स्टेट्स होता है, कुछ पता है? यस सर। व्हिच आर? एक होता है बोस आइंस्टाइन, कुछ बोस आइंस्टाइन मैटर। अच्छा, और? Except solid liquid gas we have two more kind of state, बट उन लोगों का हम लोग रियल लाइफ में ज्यादा यूज नहीं पाते, बस इसीलिए हम लोग पढ़ते नहीं है। जनरली हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस को एज्यूम करते हैं, ठीक है, जनरल कंडीशन। तो वो दो कौन सा है? एक है मेरे पास प्लाज्मा, और एक है मेरे पास बोस आइंस्टाइन कंडेन स्टेट, इन शॉर्ट बीईसी। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेन स्टेट
एंड एक होता है प्लाज्मा। तो इसके बारे में हम क्लास 9 में पढ़ेंगे डिटेल्स में, 9 या 10 में। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत सिर्फ याद रखना, प्लाज्मा क्या होता है सर बताए थे? नो सर। नहीं बताए थे, अच्छा। किसी तो पता है? किसी तो नहीं पता है, ठीक है। देखो प्लाज्मा जो होता है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे, सन। सन का कौन सा स्टेट होता है? सन तो क्या हम लोग सॉलिड में देखते हैं या लिक्विड में देखते हैं या गैसियस में देखते हैं? क्या होता है सन में? कौन सा स्टेट होता है सन में? सन क्या सॉलिड है? पता नहीं। सन लिक्विड है? पता नहीं। सन गैसियस है? डोंट नो। एक्चुअली जानने का बात भी नहीं है। देखो सन जो है ना, हम लोग को जो दिखाई देता है एक ऑरेंज कलर का, ऐसा एक सन सुबह में और शाम में ऑरेंज। और अगर दिन में देखो तो अभी अगर विंडो से थोड़ा बाहर की तरफ देखो, अगर सन दिखाई दे रहा है, आर वी एबल टू सी सन एट दिस टाइम एट प्रेजेंट बाय आवर नेकेड आई? हम लोग अगर खाली आंखों से सूरज की तरफ देखेंगे तो हम लोग क्या सन को अभी देख पाएंगे? नो सर। क्यों नहीं देख पाएंगे, कोई बोल सको दे? सर बिकॉज उसका लाइट बहुत ज्यादा तेज है। बहुत तेज है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो सन जो है ना, सन वो ना ही सॉलिड है, ना ही गैसियस है, ना ही लिक्विड है, ठीक है। सुबह शाम ये ऑरेंज दिखाई देता है, दोपहर के टाइम ये डेजलिंग व्हाइट की तरह दिखाई देता है। अभी देखो ये डेजलिंग व्हाइट की तरह है ना, पूरा लाइट से एकदम भरा हुआ है। तो सन का जो स्टेट है दैट इज सन एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट अगर पूछे थी व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि सन का स्टेट, लेकिन वो तो एग्जांपल हुआ ना। डेफिनेशन क्या बोल, सन का टेम्परेचर क्या है? ठंडा है या गर्म है, मतलब कोल्ड या हॉट? सुपर हॉट। अगर सुपर हॉट बताए तो कोई गलती बता रहे? नो सर। नो, बिकॉज सन का जो टेम्परेचर है, हीट है, वो सुपर हॉटेड स्टेट है। सन का हीट से पूरा अर्थ हीट अप हो रहा है, मतलब सन का हीट कितना है वो समझ लो। तो प्लाज्मा का मतलब होता है सुपर हॉट स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। सुपर हॉटेड स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब यहाँ पर प्रेजेंट क्या होता है, देखो ये प्लाज्मा स्टेट बनता कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। सपोज मेरे पास ये 1 बीकर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वाटर तो लिए, ये वाटर है। अभी सपोज समझो हम लोग इसको हीट कर रहे, हीटिंग सप्लाई कर रहे बाय बर्नर, ठीक है। हीटिंग सप्लाई कर रहे बाय बर्नर। तो हीट करने पर हम लोग हीटिंग सप्लाई कर दिए, ठीक है। हीटिंग सप्लाई, हीट करने पर वाटर क्या होगा, बॉयल करेगा। यस सर। एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बॉयल? 100 डिग्री सेल्सियस। Very good. When the temperature will reach 100 degrees Celsius, water starts to boil. So when it will start to boil, it will convert from liquid state to गैसियस स्टेट। gaseous state. Very good. हम लोग डायरेक्ट उसको गैसियस नहीं बोलते, उसको बोलते वेपर, वाटर वेपर। वेपर इज इन गैसियस स्टेट। वेरी गुड, ठीक है।
अब इसी वेपर तो और हीट कर दो, और हीट कर दो, मतलब इसको नियर अबाउट 20 टाइम्स हीट कर दो, तो ये वेपर से मेरा बन जाएगा प्रॉपर गैसियस। ठीक, अब बताओ तो ये वेपर और ये गैसियस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो ऐसे तो लग रहा है सेम है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कुछ पता है क्या डिफरेंस होता है? एनी आइडिया? समझ में आ रहा है? हम क्या पूछ रहे हैं वो समझ में आ रहा है? हेलो, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, यस सर। वॉइस आ रहा है ना? ठीक है, हाँ सर। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हम लोग वाटर यहाँ पर था, यहाँ पर था वो लिक्विड स्टेट पे, इसको हीट करे तो वो वाटर वेपर बन गया। अब उसको और ज्यादा हीट करेंगे, नियर अबाउट 20-30 टाइम्स ह्यूज टेम्परेचर डालेंगे, तो वेपर विल गो टू गैसियस स्टेट। ठीक, तो अभी बताओ तो ये वेपर और गैसियस में डिफरेंस क्या है? कभी ये पढ़े हो? मैटर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तुम लोग बोले तो मैटर तो स्टेट के बारे में ये तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सर बताए थे या नहीं बताए थे? नो सर। अच्छा ठीक है, तो देखो वेपर और गैसियस में ये क्या डिफरेंस होगा, इस बात तो समझो। हम बोल रहे वाटर वेपर, हम बोल रहे वाटर वेपर, तो वाटर वेपर तो यहाँ से इवापोरेट होगा ना, ये तो पता है। यस सर। कभी देते हो अपने आंखों से वाटर तो वेपर बनते बाहर निकलते देते हो? कभी ये ऑब्जर्व किए हो? यस सर। यस सर, होते। कभी ये देते हो कि ऑक्सीजन गैस तुम्हारे आंखों के सामने से फ्लो कर रहा है? नो सर। बस यहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वेपर है मतलब वेपर तो हम लोग विजुअलाइज कर रहे, वेपर फॉर्म में है मतलब ये विजुअलाइज हम लोग कर पा रहे, लेकिन गैसियस फॉर्म तो हम लोग कभी भी विजिबल है क्या? नो सर। नहीं विजिबल है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर फेज एंड गैसियस फेज। ठीक है, माइन्यूट सही डिफरेंस है। वेपर तो हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो वो गैसियस में कन्वर्ट होगा। वेपर मतलब हम लोग देख पाते, घर में अभी हो जो भी सिलेंडर है किचन में, उस पर वाटर को रख दो एक पॉट में, हीट करो, वाटर वेपर बनेगा, यू आर एबल टू ऑब्जर्व दैट, बट वी आर नॉट एबल टू सी सच काइंड ऑफ गैसियस पार्टिकल। गैस फॉर्म में हम लोग किसी को नहीं देख पाते, but we are surrounded by so many gases, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc., but they are not visible to us. This is the difference. So वेपर तो जब स्ट्रॉन्ग हीट करते, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते, एक्सट्रीम हीट करते, तब मेरा वेपर बन जाता है गैसियस फॉर्म। समझ में आया? यस सर। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर क्लोरीन तो देख सकते हैं, क्लोरीन गैस तो वो गैसियस फॉर्म में नहीं है। कौन क्लोरीन? यस सर। हाँ, क्लोरीन हम लोग जो देखते हैं ना, मतलब वो लेबोरेटरी में, वो उसका वेपर निकलता है पहले, फिर जब वो गैसियस फॉर्म में एग्जट चला जाता है उसको दिखाई नहीं देता है। मतलब जो व्हाइट फ्यूम्स, वो फ्यूम्स का फॉर्म में है अभी, इसीलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो और भी दूर चला जाएगा गैसियस में, तब दिखाई नहीं देगा। यस सर। तो ये गैसियस फॉर्म जब बनता है तो क्या होता है पता है? कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है ना, उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जो है, मॉलिक्यूल या एटम जो भी है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। जो भी यहाँ पर मान लो वाटर वेपर्स था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन
बाहर आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सुपर हॉटेड स्टेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया, बाहर आ जाने से वो फ्री हो गया ना, सो इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दैट इज कैटायंस। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, किसी भी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला दिया तो ये प्लस बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला दिया तो ये प्लस बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में यही प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में ये पॉजिटिव चार्ज आयंस होता है ये वाला, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कोई डाउट है? नो सर। श्योर, आयंस क्या, वाटर को भी प्लाज्मा में चेंज कर सकते हैं, किसको? वाटर को। हाँ, वाटर को भी हम लोग प्लाज्मा में लेते जा सकते, बहुत हीट करेंगे, एक्सट्रीम हीट करेंगे तब। बेसिकली प्लाज्मा है क्या, सुपर हॉटेड स्टेट है ना, तो हम लोग उतना हीट अगर कर देते अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा, लेकिन 4000 डिग्री सेल्सियस रीच कर पाना नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, यस, आयंस क्या होता है पता है, आयंस क्या होता है? हम यहाँ पर क्या, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वेरी गुड, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनता है मेरा प्लाज्मा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, प्लाज्मा इज सुपर हॉटेड स्टेट विच कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये हो गया मेरा टोटल डेफिनेशन। ठीक है, प्लाज्मा इज सुपर हॉटेड स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर प्रेजेंट। इसको नोट डाउन करो पहले जल्दी से प्लाज्मा को, और हो जाए तो हम तो एक बार बताओ कि सर डन। So completed. ओके, बाकियों तो अभी हो गया। जैसे प्लाज्मा का डेफिनेशन रखना है। हाँ, प्लाज्मा का डेफिनेशन लिखना था, इट इज सुपर हॉटेड स्टेट एंड इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर प्रेजेंट। डन। यस सर। अब हम लोग देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट, ये क्या होता है। ठीक है, चलो इस प्लाज्मा डन ना, श्योर, हम इसको रब कर लेंगे। अच्छा चलो रब नहीं करते, साइड में करते हैं, फिर बाद में अगर काम। चलो देखो, हम तो ये बताओ, मान लो वाटर है, वाटर इन लिक्विड स्टेट पे है,
और हमको वाटर से बनाना है आइस। तो आइस क्या है? बेसिकली वाटर ही है, ये तो पता है। लेकिन कौन से यस सर। लेकिन कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। तो वाटर से आइस मतलब वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे बताओ? तो वाटर को फ्रीज करेंगे। वाटर को फ्रीज करना पड़ेगा, दैट्स मीन प्रोसेस तो हम लोग बोलते थे फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा वाटर को, या वाटर से टेम्परेचर या हीट निकालना पड़ेगा? सर निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। पड़ेगा, दैट इज माइनस हीट। वाटर से हीट निकाल दिए, वो सॉलिड बन गया। अब इसी तरीके से बहुत ज्यादा हीट निकाल देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट अगर निकाल दिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट अगर निकाल दिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को अगर रिलीज कर दिया गया, ठीक है, तब एक स्टेट बनता है, उसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। बेसिकली ये साइंटिस्ट बोस एंड आइंस्टाइन का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस करके एक स्टेट बना हुआ है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सुपर कूल्ड स्टेट। देखो प्लाज्मा के साथ पूरा उल्टा, प्लाज्मा क्या था? सुपर हॉटेड स्टेट था, और ये क्या है? सुपर कूल्ड स्टेट है, ठीक है। एक्सट्रीम 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 लेवल पे अगर हम लोग उसको कूल कर देना नियर अबाउट 0 केल्विन के आसपास, तब हम लोग उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट। और वो स्टेट जो आया था वो एक इमेजिनरी पोर्शन है, बोस आइंस्टाइन एक थ्योरी दे रहे थे उसका। ये अभी तक नेचर में उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है। लेबोरेटरी के थ्रू हम लोग कुछ स्पेस में एक पर्टिकुलर स्मॉल प्लेस में इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन द लार्ज स्केल, ठीक है। जैसे सन, सन एक लार्ज स्केल में सुपर हॉटेड है नेचुरली, जितने भी स्टार्स है, ठीक है, तो वो नेचुरली सुपर हॉटेड है। लेकिन ये नेचुरली नहीं है सुपर कूल, ये हम लोग मैन मेड कर सकते हैं। इसलिए दोनों साइंटिस्ट जो बना रहे थे, उन्हीं के नेम के हिसाब से इसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। ये तो फ्रीजिंग करना, फ्रीजिंग का और एक टर्म हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर कंडेंसेशन ही कर रहे हैं, बट एक्सट्रीम लेवल पे कंडेंसेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। एक स्टेट बन गया, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। सो सुपर कूल्ड स्टेट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंस्टेट, ठीक है। हम तो बस इतना ही याद रखते हैं, और कुछ नहीं। नोट डाउन करो। हो जाए तो बोलो। सब कंप्लीटेड। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं
इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स। जो मेरा 3 स्टेट मिला उन तीनों स्टेट में इंटर कन्वर्सन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात देखो, ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, ये रहा गैसियस। तो इंटर कन्वर्सन कर रहे हैं ना, मतलब सब से सब में जाएगा। सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से सॉलिड भी बनेगा, सॉलिड से गैसियस बनेगा, गैसियस से सॉलिड भी बनेगा, लिक्विड से गैसियस बनेगा, गैसियस से लिक्विड भी बनेगा। अभी हम तो सबसे पहले बताओ, क्योंकि तुम लोग का ये हो चुका है। सॉलिड से लिक्विड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, मेल्टिंग। मेल्टिंग। और सिद्धार्थ क्या बोले? नहीं समझ में आ रहा है, टाइप करो ना। एक तो तुम बोले मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग। तो लिक्विड टू सॉलिड क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, या फिर अच्छा चलो फ्रीजिंग ही रहने दो। फ्रीजिंग ठीक है। लिक्विड से गैसियस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैसियस, वेपोराइजेशन। वेरी गुड, वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन, ठीक है, इतनी बात है। और गैसियस से लिक्विड को क्या बोलते हैं? The condensation. कंडेंसेशन, ठीक। सॉलिड से गैसियस तो क्या बोलते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा तो क्या बोलते हैं? Sublimation. सब्लिमेशन, वेरी गुड। हम लोग इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और गैसियस से अगर डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो Decantation. Deposition. डिपोजिशन, ओके, इट इज डिपोजिशन या फिर रिवर्स सब्लिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन का उल्टा, इट इज कॉल्ड रिवर्स सब्लिमेशन। तो अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या है, अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग इज द प्रोसेस, melting is the process in which solid converts to liquid, in which solid converts to liquid by supply of, यहाँ पर क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हीट सप्लाई करते हैं या हीट रिलीज करते हैं? सप्लाई। Release. रिलीज कैसे? Solid to
सर सॉलिड। सॉलिड टू लिक्विड पूछ रहे, सॉलिड टू सॉलिड टू लिक्विड क्या होगा, हीट सप्लाई और हीट रिलीज? सर हीट सप्लाई। हीट सप्लाई, एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो, आइस। तो आइस से हमको फिर वाटर बनाना है, तो वाटर से जब आइस बना था तब हीट हम लोग रिलीज किए थे, फ्रिज में डाल दिए, हीट रिलीज किए। लेकिन वापस से वही आइस अगर लिक्विड बनना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा मेल्टिंग। फ्रीजिंग के लिए क्या होगा, फ्रीजिंग के लिए उल्टा होगा, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच, ठीक है, यहाँ पर लिखना प्रोसेस बाय व्हिच it is the process by which liquid converts into solid by releasing heat। समझ में आया? वेपराइजेशन का क्या होगा, सेम, इट इज द प्रोसेस कन्वर्ट्स टू लिक्विड टू गैसियस बाय सप्लाइंग द हीट। हम सिर्फ ये बता दे रहे थे कहाँ हीट सप्लाई हो रहा है और कहाँ हीट रिलीज हो रहा है, क्योंकि बाकी तो यही रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस होगा बाय सप्लाई ऑफ हीट। ठीक है, समझ में आया? और कंडेंसेशन में क्या होगा, हीट रिलीज होगा। सब्लिमेशन में हमको क्या लिखना है, प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड गोज directly into gaseous state is called sublimation और डिपोजिशन इसका उल्टा। समझ में आया सबको? हैविंग एनी डाउट? श्वेता कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स, और हर एक हेडिंग का अलग से डेफिनेशन लिखो जल्दी से जल्दी। मेल्टिंग का अलग से हेडिंग करना, फ्रीजिंग तो फिर से हेडिंग करना, पहले ये टेबल बनाओ फिर इसको अलग से हेडिंग करते ये 6 का डेफिनेशन लिखो। Completed, sir. तीन सब इंडिविजुअली लिख लिए? Yes, sir. ओके,
ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया सिद्धार्थ? डन? सर 2 मिनट्स रुकिए। अच्छा ठीक है। यस सर। होते हैं, ठीक है ठीक है। चलो बोलो तो तुम लोग तो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, मतलब ये चैप्टर में और क्या क्या टॉपिक बचा है? तुम लोग तो बस बुक है ना, थोड़ा सा हमको वहाँ से देख के बताओ ना क्या क्या टॉपिक है, मतलब इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक दे रखा है। मेरे पास तो सिलेबस नहीं है, बुक भी नहीं है। सर जो चैप्टर को छोड़कर। हाँ बोलो। बोलो। सर जो सब टॉपिक एग्जाम के लिए आ रहा है वो सब बताए कि पूरा बुक का इंडेक्स बताए? जो जो एग्जाम में आ रहा है पहले वो बताओ। सर हम लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मैटर और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आ रहा है। मैटर आ रहा है और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आ रहा है फर्स्ट टेस्ट में। फर्स्ट टेस्ट कब होगा? सर वो जून में होगा। वो जून में होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैटर तो हम तो बताओ, मैटर में कौन कौन सा हेडिंग दिया हुआ है, जैसे हम करवाई इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। सर सबके स्कूल में अभी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हुआ है, मैटर अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा मैटर शुरू नहीं हुआ है, तो बूथ नहीं है तुम लोगों के पास? सर बुक है हम लोगों के हाँ पास। तो वहां पर देखो मैटर में कौन कौन सा हेडिंग है, जैसे इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट करवा दिए, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिडिटी। मैटर बाकी है। कौन सा बात है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। और चेंज ऑफ स्टेट बाय प्रेशर। हाँ हाँ हाँ, चेंज ऑफ स्टेट बाय प्रेशर। चेंज ऑफ स्टेट्स बाय प्रेशर, ठीक है। हम लोग चेंज ऑफ स्टेट किए अभी, ठीक है, वहां पर ही प्रेशर तो ऐड कर लेना है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। और कुछ है? और कुछ है?
I'm not getting your voice. Anything else? No, sir. No, Okay, sir. ठीक है। तो चलो अब हेडिंग चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ये बोल रहा है कि ये जो मैटर है, ठीक है, ये जो मैटर है इसको हम लोग कभी भी neither we can create it, neither we can create nor destroy। हम लोग ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते। जस्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तो बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब क्या? वो रिजर्व हो चुका है, कंजर्व्ड है, ठीक है, ये मैटर कंजर्व्ड है। यूनिवर्स में जो मैटर बन चुका है, जो फॉर्म हो चुका है, वो कंजर्व है। अब उसको हम लोग सिर्फ वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे लेते जा सकते हैं, उसको कभी भी हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो स्टेटमेंट लिखे थे हम लोग, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर destroyed। The overall matter is always conserved in any chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वहां पर जो मैटर है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो सपोज मेरे पास है ए और बी, आपस में रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है सी एंड डी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोल रहा है कि रिएक्शन से पहले मेरे पास ए और बी का जो मास था, ए और बी का जो मास था, रिएक्शन के बाद सी और डी का जो मास बनेगा वो सेम होना चाहिए। इसी तो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। कि मास या मैटर हम लोग कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते। जैसे सपोज रिएक्शन से पहले ए का मास था 2 ग्राम, बी का मास था 5 ग्राम, तो टोटल कितने हो गए? 7 ग्राम। 7 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले ए और बी मिलाकर मेरा मास था 7 ग्राम, रिएक्शन के बाद भी कितना होना चाहिए? 7 ग्राम। तो ये हो गया, ये भी बनेगा 2 ग्राम, ये भी बनेगा 5 ग्राम। तो टोटल यहाँ भी कितना हो गया?
7 ग्राम। अगर दोनों तरफ बराबर हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर इज वैलिड हेयर। ठीक, अभी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि a प्लस बी का जो मास है वो c प्लस डी का मास से सेम नहीं है। सपोज ये 7 ग्राम, सपोज ये 6 ग्राम, उस टाइम पे क्या बोल सकते थे, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेम है, मतलब वैलिड है? No, sir. नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जब देखने से ऐसा मिलता है कि ये जो रिएक्शन से पहले जो मेरा था उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ये पता है? Yes, sir. दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वेरी गुड। और इन सब को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो जब देखने तो मिलता है कि प्रोडक्ट्स में मास कम हो गया ना, तो उस टाइम पे देखो देते इस साइड में कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ है, तभी जाते वो मास मेरा कम हुआ है। तो ये जो मास मेरा कम हुआ, कितना मास मेरा शॉर्टेज है? मास का शॉर्टेज कितना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में? 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम मास जो है ना, इट विल लीड दिस हीट। ये जो हीट बना वो कहाँ से बना? ये जो 1 ग्राम मास मेरा यहाँ पर शॉर्टेज हुआ, यही 1 ग्राम हीट, 1 ग्राम मास मेरा वो हीट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा मेरा सेम होना चाहिए। हम लोग एग्जांपल देते समझ रहे हैं। ये नोट डाउन कर लिए, यहाँ पर स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिए। Yes, sir. सिद्धार्थ? यस सर। ओके, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। तो एग्जांपल ऐसा है, HCl reacts with NaOH, ये फॉर्म कर रहा है NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पर हम लोग मास तो कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है या नहीं। हाइड्रोजन का मास होता है 1, Cl का होता है 35.5। ये तुम लोग तो पता नहीं होगा शायद, पता है क्या? No, sir. अच्छा, देन वेरी गुड। सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो ये टोटल कितना बन गया देखो, 36.5 प्लस ये हो गया 40। तो टोटल मास बन दिया रिएक्टेंट्स का 76.5 ग्राम, ठीक। यहाँ पर देखो सोडियम का मास कितना है 23, Cl का 35.5, तो ये बन दिया 58.5 प्लस हाइड्रोजन तो 1 होता है, सो 1 इंटू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन है मतलब 16। तो ये कितना होगा 16 प्लस 2 18, ऐड करो 8 8 6, हाथ में 8, 5 8 6 8 7, दोनों तरफ मास बराबर आया, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर जो भी बोलो इस वैलिड है। कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर।
श्वेता कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, डेफिनेशन के बाद इस एग्जांपल तो यहाँ पर नोट डाउन करो जल्दी से। हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। कोई डाउट है आज से क्लास में? No, sir. होते तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो प्रेशर का इफेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट चेंज स्टेट में, और वो काइनेटिक थ्योरी करेंगे, और चैप्टर उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। सर ये काइनेटिक थ्योरी वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है क्या? लास्ट पोर्शन बोले नहीं हुआ है। लास्ट पोर्शन मतलब ये काइनेटिक थ्योरी वाला पोर्शन हुआ है या नहीं हुआ है? No, sir. ठीक है, सर प्रेशर का इफेक्ट हो गया है। प्रेशर तक हो जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अभी कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, चलो। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Good morning and thank you, sir. वेलकम।
वो हाइलाइटर हम कर देते हैं ना, गोल गोल दिखता है तो। हाँ हाँ पीला वाला, हाँ बहुत है बहुत है। तो मैसेज आ रहा है ना, ठीक। कहाँ आ गया? पोडियम तो है ही नहीं इसमें। सही है ना? हेलो। आज पिकल पॉइंट कहाँ पे? ठीक है। क्या हुआ? केमिस्ट्री का कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कर दिया वीडियो। ध्यान से देखिए, हमें इसी को डुप्लीकेट कर दे रहे हैं उससे। यहाँ देखिए, नाम देखिए आलोक सर, ठीक है। तो अब आलोक सर में जाइएगा तो वेबकैम अलाउ कर दीजिए। लाइट ऑन कर दीजिए। मतलब फुल का जाएगा ऊपर लग। फैन चल, फिर फैन ऑफ करना। वेबकैम को ठीक करना आता है? यहाँ देखिए पीछे जाली जाली आ रहा है ना, जाना है वेबकैम, प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगर वीडियो, व्हाइट बैलेंस। ठीक है, लाइट ऑन कर दीजिए तब जाएगा। एक मिनट। बस नहीं होगा ना। देखिए जब भी, हाँ देखिए ये ब्लैंक पीपीटी खोलिएगा आप, समझे? ब्लैंक पीपीटी खोलिएगा, ज़्यादा आ रहा है तो खुल गया, दिख रहा? तो दिख रहा लोग सर? अभी देखिए इसमें आप ब्लैक से नहीं लिख पाइएगा, रेड से मत लिखिएगा। 1 दबाइएगा, इसमें 1 तो देखिए ब्लैक हो गया, 2 दबाइएगा व्हाइट हो जाएगा, 3 दबाइएगा येलो हो जाएगा। समझ में आया?
नमक कलर आप आसानी से चेंज कर, ई दबाइएगा तो पूरा गायब हो गया। अब आपको थोड़ा सा मिटाना है, मान लीजिए ये लाइन मिटाना है तो क्यू दबाएंगे, क्यू क्यू, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, जी। ग्रीन के ना थोड़ा आसान है, व्हाइट का लेवल तो नहीं बता रहा। তুমি যেটা অফ করো সেটা আমার চেহারাও দেখে নেবো। इसी करना से मैंने ऐसे चीजें দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে?
हाँ? हाँ ध्यान করে দিয়েছি ওটা ওইটা মাসে ঠিক পার্টিসিপেন্ট দেন পাবেন ঠিক আছে স্টার্ট ভিডিও আনমিউট সব করে দেবেন আমাদের দেখাবো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো কাছে হবে রেকর্ডিং করতে হবে না ওবিএস হয়ে যাও ওবিএসটা ওবিএস রেকর্ডিং চলছিল আগেরটা কাটো আগেরটা